Hi guys, welcome back to College Dunia YouTube channel. And today we are here with us a JEE Mains and Advanced topper, Sachi Mittal, who just got into IIT. So let's talk to her. Hi Sachi, how are you? Hi, so I'm fine. How are Yeah, great. I'm fine too. Okay, Sachi. First of all, many congratulations for getting into IIT and such a wonderful rank. So let's start about your preparation journey. So when did you actually dreamt of getting into IIT and started your preparation? I thought about getting into an IIT and starting my JEE prep in 11th only. I didn't even know about JEE before that. So when a lot of students started preparing for JEE, I also got into the flow of that and started preparing for JEE. Great. So you started in your 11th standard. That most of the students do in 11th. Okay, so great. So it was your first attempt, right? Yeah, it was the first attempt. Okay, great. So let's talk about how did you went to prepare. So did you prepare using self-study or you relied on some coaching? I had a coaching. I did dummy schooling with that, so I didn't go to school. I just went there for the exams, and mostly I went to my coaching and did only the coaching things and nothing extra. Okay. So you went to a dummy school and at least you prepared for coaching. Yeah. Okay, great. So let's start about your beginning of the preparation. So जैसे आपने starting में किया होगा तो it must have been difficult for you like 11th में आके 10th के बाद workload just increases exponentially. So what was the experience about that? I think my first half of 11th was just totally a disaster. I was trying to adjust to because it was totally a change. 10th and 11th was too different. They were like very two different worlds. And my 11th, first half of 11th was totally very bad. I have to do this, I have to follow that, and I don't have to do this. Quite clear, but so yeah, it becomes clear if you do it every day. Okay. So it generally happens the same with most of the students. So what would you advise the upcoming students who are preparing for JEE to, what to do in the starting of their preparation? I would say they probably figure it out on their own, but just don't get stressed that I'm not able to do this or that, or this child is doing a lot better than I am. Maybe they are preparing for like 2 or 3 years earlier, because some kids start their JEE prep very early. So I don't think they need to take much stress. Otherwise, things will figure out eventually. Yeah, right. Self-doubt and comparison are the most killers. Yeah. Okay. So, as I said, that the starting and the beginning phase are the most important in the JEE preparation or in the preparation of any exam. So after that, were you accustomed to the JEE stress or what did you actually face? I think JEE stress मतलब हर ही बच्चा वो उसको फेस करता है, बट वो होता है कि आप उसको कैसे फेस करते हो. I took that stress because my family was always there to support me after coaching or after anything. I was studying at home. A lot of students who go to Kota are not able to take that stress in a good way. I was able to take it in a good way because I had my family right there with me. And I think if a person is experiencing stress, they should really talk to their loved ones or the one who support them, and it will really help them out. Yeah, exactly. Speaking your heart out is the most important remedy to break your stress. Yes. Okay, so it is the most asked question is like आपने social media continue किया था during your JEE prep और आपने totally avoid करा था. Like how did you manage your day? मैंने तो पूरा सोशल मीडिया चलाया ही था. मेरा बहुत ही अलग था दूसरे बच्चों से. मतलब ज्यादातर बच्चे फोकस करते थे कि क्वालिटी ऑफ टाइम पे, कि उन्होंने कितना क्वालिटी ऑफ स्टडी किया. मैं यूजुअली क्वांटिटी ऑफ टाइम पे फोकस करती थी. मतलब इतना सही तरीका नहीं है, बट मेरे लिए काम कर जाता था वो.
तो मेरा था कि मुझे जितना पढ़ना है उतना मैं पढ़ लूंगी, और बाकी टाइम मेरे को चाहे फोन चलाना हो चाहे जो करना हो, तो मेरा टाइम पास के लिए मैं सोशल मीडिया ही यूज करती थी प्रॉपरली। और मैं सोशल मीडिया चलाती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि मेरे को इससे ज्यादा उस पर एडिक्ट नहीं हो जाना है कि मैं 1-2 घंटा इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट के लिए देख लिया तो ठीक है, वरना उसके पीछे पागल ही नहीं हो जाना कि स्क्रॉल ही करे जा रहे हैं। Right. It is the same as most of the talkers say that you should know your limits and आपको पता होना चाहिए कितने देर आपको पढ़ना है, कितने देर सोशल मीडिया यूज करना है. Right. Okay, so let's come to your preparation strategy. So did you make any preparation strategy like your timetables or your individual strategy for physics, chemistry and mathematics? माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मतलब कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी। माई टाइम टेबल वॉज दैट कि मेरा एक फिक्स टाइम था कि आई हैव टू स्टडी फॉर 12 आवर्स एवरी डे, और मेरे को उसको हर रोज फॉलो करना है। तो उसमें कुछ टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया करना होता है, कभी कोचिंग की टाइमिंग चेंज हो जाती है तो वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट के लिए मेरा स्ट्रैटेजी वही था कि जो मेरे को कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा मैं उसी को फॉलो करूंगी, क्योंकि हमारा कोचिंग का मटेरियल इनफ था। उससे ज्यादा आपको ना करने का टाइम मिलेगा, आपको बस उतना ही फॉलो कर लोगे तो वो भी काफी है। और ये मैं यूजुअली फॉलो करती थी कि मैं जो चीज कर रही हूँ उसको समझूं, चाहे वो ज्यादा टाइम लेके समझूं, बट उसको कि रट लिया एक बार में या फिर उसको छोड़ दिया तो फिर वो छूटा ही रह जाता है। Right. It's a very great advice कि जितना कर रहे हो उतना ढंग से करो, कितना भी टाइम लगे, just give it time and don't leave any topic. Yeah. Okay. So let's discuss about your revision strategy. So how did you revise your topics what you have studied? मेरे को रिवीजन के लिए मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन पे ही स्पेंड करती थी, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं, तो मेरे को याद करने में चीज़ें काफ़ी टाइम लगता था। तो मैंने फिजिक्स और मैथ्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना रखे थे चैप्टर वाइज, और केमिस्ट्री के लिए भी। केमिस्ट्री के लिए मेरे काफ़ी डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स थे, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का काफ़ी पार्ट आपको याद करने का होता है। फिजिकल के लिए मैंने बस फॉर्मूले लिख रखे थे, और फिजिक्स और मैथ्स में भी मोस्टली सेम चीज़ थी कि फॉर्मूले लिख रखे हैं और उनको रोज रिवाइज करते जाना है कि आपको याद हो जाए, आपकी मेमोरी में फिट हो जाए, ताकि वो आपको एग्जाम में डिराइव ना करना पड़े। तो मेरी तो यही थी कि एटलीस्ट दिन के 2-3 घंटा रिवीजन पे जरूर उसको रखूं कि बस रिवाइज करते जा रहे जो आपने चीज लिखी है। राइट शॉर्ट नोट्स मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूलाज जो आपको मस्ट रिमेंबर होना चाहिए, आप उसका या तो नोट्स बना लो या फिर अपने वॉल पे चिपका लो, चार्ट पेपर, बड़े-बड़े पोस्टर्स। राइट यस ओके सो लाइक आप मतलब अवेयर हो गए जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग्स है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दे प्रिपेयर बाय YouTube वीडियोस। तो आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आपने YouTube से देखा हो? मैंने बस आई गेस फिजिक्स के 2-3 चैप्टर्स हमारे लास्ट में करे थे, क्योंकि हमारी कोचिंग ने छोड़ दिए थे वो। तो मैंने इतना YouTube पे रिलाई नहीं किया था या ऑनलाइन सोर्सेज पे। मैंने काफ़ी लाइक आई गेस लास्ट के जब मेंस अटेम्प्ट से 1-2 महीने पहले जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको ब्रश अप करने के लिए आप ये YouTube वीडियोस चलाते हो, वरना मैं मोस्टली कोचिंग में ही करती थी अपना जो भी करती थी। उसके अलावा आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप YouTube वगैरह पे चला के वो चीज़ देखो। Great. Okay, so apart from coaching, you know, many students, what they advise is they do external books like Herodov and R.D. Sharma, etc. So, what's your point of view on that? I think Herodov is a really great book. हमारी बहुत बच्चे को मैंने करते हुए देखा है Herodov, बट वो JEE बेस्ड नहीं है सिर्फ। आई थिंक आपको अगर एक्स्ट्रा बुक्स लगानी है तो जो बिल्कुल JEE बेस्ड के पैटर्न पे वही लगाइए, जैसे कि JEE के एडवांस के पुराने क्वेश्चंस है आर्काइव के, या फिर जो भी हमारा HC वर्मा हो गया वो बिल्कुल JEE पैटर्न पे ही है, तो आप वो लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था लास्ट में क्वेश्चंस करने के लिए, तो मैंने लास्ट की के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर ली, जो पैटर्न चलता रहता है उसी को फोकस करने के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं भी लगाओ तो। Yeah, okay. So according to you, previous year questions from the archive are, you know, must Yeah. Okay. Yeah, so, like a must do. Okay. So let's come to the previous year questions only. Okay. So आपने mock tests भी दिए होंगे? Yes. So what's your experience with mock tests and previous year questions, and what was your overall strategy for attempting mock tests?
आई थिंक मैंने बहुत बड़ी गलती की थी फर्स्ट मेंस में कि अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मेरे को लगा कि मैं नोट्स ही रिवाइज करती रहूंगी तो मुझे सब याद हो जाएगा, तो क्वेश्चंस तो बाद में हो, तो ये मैंने बहुत बड़ी अच्छे भी मार्क्स नहीं आए थे फर्स्ट मेंस में। तो मेरे को तब तक रियलाइज हो गया था कि मार्क्स अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तब भी देने बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में तो क्वेश्चंस बहुत ही रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको एक बार कंसेप्ट उसका याद आ जाए। क्योंकि बहुत बार अगर आपने क्वेश्चन मॉक में दे रखा हो या प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हो तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, कि वो बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन में देते हैं वो लोग एडवांस। और तो फिर मेरे को सेकंड मेंस में मेरे को वो मेरा मार्क्स में डिफरेंस भी दिखा था कि फर्स्ट मेंस में मैं मॉक्स नहीं करके गई थी तो मेरा बहुत बेकार गया, और सेकंड मेंस में मॉक करके गई थी और बहुत सारे PYQs लगा के गई थी, पेपर्स देके गई थी, तो मेरा बहुत अच्छा गया। और एडवांस में आप ये कह सकते हैं कि आपको 3 घंटे और 3 घंटे की शिफ्ट में बैठने की प्रैक्टिस लगानी पड़ती है, क्योंकि 6 घंटा आपको लगातार शिफ्ट में बैठना बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप 6 घंटा लगातार एक उसमें बैठ सकते हैं। तो आई थिंक एडवांस के लिए तो यही, क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीट ही नहीं होते एडवांस में। या राइट। सो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन रिपीट होते हैं मतलब जेईई मेंस में, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि आपने जैसे बोला 3-3 घंटा 6 घंटे के लिए बैठना, तो आपकी बॉडी के साथ आपका माइंड भी सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए तभी वर्क करता है। सो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो आपने जैसे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो जनरली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, एंड यू नो एवरीवन or the most of the students don't get their desired marks in their first mock test, so they just leave attempting them and they just keep revising the formulas, as you said that you earlier did. So did it happen with you also, like first mock test में थोड़े खराब स्कोर थे? हाँ, वो ब्लेंडर सबको ही लगता है कि अगर पहले मॉक में अच्छे नहीं आई तो लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ दिक्कत है, बट वो ये होता है कि आपको इतने जल्दी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर आप एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप उसी पे अटक जाते हो, 10-15 मिनट उसी क्वेश्चन को करने में लगा देते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आपको उस क्वेश्चन का वो लगता है कि ये क्वेश्चन रह गया मेरे से, मैंने पहले करा है, तो आपका आगे का जो पेपर देते हो वो भी काफी बैड माइंड में जाते हैं कि मूड अच्छा नहीं होता पेपर के टाइम, फिर आगे वाले तो वो भी बेकार चले जाते हैं क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होने लग जाती है धीरे धीरे। तो मॉक से यही देने का फायदा हो जाता है कि आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाती है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो वही मेरे को सेकंड मीन्स में मेरा हेल्प करा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो गया था। अगर मेरा एक क्वेश्चन रह गया तो मैं उसके पीछे क्रिप नहीं करने लग जाती थी कि यही क्वेश्चन रह गया, मैं आगे के पेपर की तरफ बढ़ पाती थी। Right. So the motto should be to keep going. कैसे भी मार्क्स आए लेकिन you should be keep going. Okay. So चलो let's discuss about how did you attempt your paper. Let's say first discuss about mock test and then your real JEE mains paper. So आपने कैसे कैसे सॉल्व किया, आपने पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व किया, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी सॉल्व करने की? मेरी मेंस में तो मेनली ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले फिजिक्स करूंगी, केमिस्ट्री एंड देन मैथ, क्योंकि फिजिक्स मेरा मोस्टली स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता था, एंड केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी भी नहीं है बहुत तो उसकी केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो बहुत स्कोरिंग होता है। तो केमिस्ट्री आपको एक वो हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है मिड पेपर, क्योंकि मोस्टली ईजी ही आती है। मैथ तो मतलब जितना टाइम बच जाए वो मैथ के लिए दे दो, उसके फटाफट आसान क्वेश्चन कर लो, और उसके लास्ट के जो क्वेश्चन बचे उन्हें थोड़ा छोड़ दो। फिजिक्स में इसलिए पहले करती कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट भी था, और मोस्टली क्वेश्चन मेरे से फिजिक्स के बन जाते थे, 2-3 ही रहते थे मेरे साथ पेपर में कि जो नहीं बने। सेम विद केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री में एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता था क्योंकि टाइम भी बहुत कम लगता है केमिस्ट्री में, और क्वेश्चंस भी मोस्टली हो ही जाते हैं क्योंकि यूजुअली याद ही होता है केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। मैथ तो मतलब जितना हो गया, कभी कभी डिफिकल्ट भी आ जाती है तो उसको आप मैनेज कर लेते हो, लास्ट में रखो तो ही अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। एडवांस के लिए मेरी मोस्ट ऑफ द सेम ही थी, बट एडवांस के लिए ये था कि जितने हो रहे हैं होते जान दो, कभी कभी पेपर भी डिफिकल्ट आ जाता है एडवांस का, तो वो टेंशन में नहीं लेना कि क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, क्योंकि लाइक 2016 का पेपर या 2022 का पेपर, उसमें जिन बच्चों ने कम क्वेश्चंस करे उन्हीं का सिलेक्शन हो गया, या फिर जिन बच्चों ने बहुत ही एक ही क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया तो उनको आगे दिक्कत हुई 2016 और 2022 के पेपर में, क्योंकि पेपर ही डिफिकल्ट आ गए थे तो कट ऑफ लो चली गई थी। राइट वही है, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मतलब अटेम्प्ट से ज़्यादा यू शुड फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, राइट? या ओके, सो जैसे जेईई मेंस में आपने बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी थी पहले फिजिक्स एज इट वाज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, इन देन केमिस्ट्री एज इट वाज इजीएस्ट, एंड देन मैथ्स।
Okay, so yeah, so for our viewers, I would say that most of the toppers say the same strategy. Like they first do their strongest part, then chemistry, as it is easy and takes shorter amount of time, and then the third subject. Okay, so आपने जैसे previous year questions करे होंगे तो आपने कुछ analysis draw किया होगा, like paper pattern जो previous 2-3 साल से कुछ change हो रहा है, फिर कैसा आप कुछ comment करना चाहोगे इसके बारे में? मैं मोस्टली जैसे कि मैं मेंस से कुछ टाइम पहले उन्होंने कुछ सिलेबस काट दिया था. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो आपको ये फायदा मिलता है जैसे कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन का वेटेज एग्जामिन कर सकते हो. तो जब मेरे अगर मेन से पहले जो सिलेबस छूट गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसका फटाफट एग्जामिन कर लिया प्रीवियस ईयर अपने क्वेश्चन से कि किसकी वेटेज कितनी आ रही. तो मैंने हैवी वेटेज के चैप्टर्स कर लिए और लो वेटेज के मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि क्या हो सकता है अभी इनमें से. तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको ये फायदा मिल जाता है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाता है कि क्या आ रहा है और वेटेज किसकी ज्यादा है. तो आप ज्यादा वेटेज वाले पे ध्यान दे सकते हो. टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा रिपीटेशन होती है तो आपको मतलब मोस्टली आपको पता चल ही जाता है कि क्या ही क्वेश्चन आने वाला है उस टॉपिक में से. मेंस में क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं तो आपको टॉपिक और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता चल जाता है कि आप प्रीवियस ईयर से आइडिया लग जाता है कि क्या ही क्वेश्चन आने वाला है. तो आपको बहुत हेल्प करता है. एडवांस में भी आप एक पैटर्न देख सकते हो कि इनऑर्गेनिक से 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही. मैथ्स में क्या होता है, हमारे सर ने हमें पैटर्न बताया था ये कि मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ईजी आते हैं एडवांस में भी, जो बिल्कुल मेंस लेवल के आते हैं. तो आप उसको अगर 3-4 क्वेश्चन भी कर लो और अगर आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपका मैथ्स का जो वो होता है कट ऑफ वो पास हो जाएगा और अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप टाइम दे सकते हो. तो फिर आपको प्रीवियस ईयर से ये फायदा मिल सकता है कि आप थोड़ा पैटर्न पता लगा लेते हो. राइट. आप प्रीवियस ईयर से पैटर्न पता लगा के जस्ट इन एडवांस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको जस्ट फिगर आउट करना है कि कौन से क्वेश्चंस इजी एंड डूएबल है, आपको कौन से करने हैं कौन से नहीं करने. सो आप कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हो. या राइट. ओके, सो लाइक अभी अगस्त एंड होने को है, लाइक ओनली 10 days आर लेफ्ट. सो अगर अभी कोई अगले साल जो 2025 का जेईई मेंस एंड एडवांस है उसके लिए कुछ अगर कोई प्रिपेयर कर रहा हो और अभी थोड़ा सीरियस हो जाए तो आप उसको क्या एडवाइस और टिप्स देना चाहोगे? आई वुड से कि आप अपने शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करिए. मेंस इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. अगर आप मैथ्स ज़्यादा आपकी स्ट्रांग नहीं है, आप मैथ को छोड़े भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही ध्यान दें तो भी बहुत अच्छा चांस है कि आपका एक अच्छी परसेंटाइल के साथ आप क्लियर कर सकते हैं. बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या किसी भी अच्छी कंपनी के या फिर किसी भी अच्छी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स उठा लीजिए. बस वही प्रैक्टिस करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए. लास्ट 2 साल के तो हो ही जाएंगे अभी, बस वो दे दीजिए. उतना काफ़ी हेल्प कर जाएगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में. Okay, great. So for our viewers, just keep going, keep studying and revising, and practice through previous year questions, and don't forget to attend mock test. So you will definitely succeed. Okay, Sachi. So we have tried to cover almost all topics for JEE preparation. So thanks a lot for your wonderful advice. Okay, so I would like to congratulate you once again for getting into IIT, and a very, very all the best for your new life ahead. So thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. And for our viewers, don't forget to like and share the video and subscribe to our YouTube channel for more such exciting videos. Thanks a lot.